नंबर 8 में क्या है? फैक्ट्री A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? Right? Here also these questions of comparison, inverse comparison, right? Please see here, how can we solve this question? 42 machines have producing 63 articles per day into 63 articles is equal to 54 day में हमको complete करना है. Number of article we have to find here, right? So simply we are dividing by 54, we get x number of articles. Okay, divide by 9. So 9 6 are 54, 9 7 are 63. 6 sevens are 42. So x is equal to 7 sevens are 49 articles per day. The machines have produced. Right? Yes or no? Yes. And then a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? See in this question, if the speed will be increased, time will be decreased because of speed and times are in inverse relation, right? So here what we have to do, just cross multiply this thing. 60 into 2, 60 is given speed, 2 is given time, is equal to, now speed will be increased 80 km per hour, then time will be decreased. We have to find time, right? And for this we divide by 18. So we get time. 0 will be cut, 2 4s are, 2 2s are, 2 3s are. So it means x is equal to 3 by 2 hours. And 3 by 2 means 1.5 hours. And 1.5 hours means 90 minutes. जो भी आपको आंसर लिखना है आप लिख सकते हो. ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो, 90 मिनट भी लिख सकते हो. जो आपको ठीक लगे वो आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है, हो गया क्लियर? Yes. ठीक है, चलो बाद में क्वेश्चन नंबर 10. 2 persons could fit new windows in a house in a 3 days. 2 पर्सन जो है वो विंडो को फिट करने में 3 दिन लगा देते हैं. ठीक है. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? देखो 2 पर्सन को मिलके 3 दिन में एक विंडो फिट करनी थी, लेकिन एक पर्सन जो था वो बीमार हो गया. वर्क स्टार्ट हुआ उससे पहले ही तो वो चला गया. तो अब विंडो को फिट करने में कितना टाइम लगेगा? एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day? अगर एक दिन में विंडो फिट करनी तो कितने पर्सन की जरूरत होगी? ऐसे 2 क्वेश्चन दिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन एंड द वर्क डन आर इन इनवर्स रिलेशन. यू नो वेरी वेल दिस थिंग. सो प्लीज सी हियर. First of all, 2 persons are fit the window in a 3 days. Now only 1 person are there because of 1 person's fell ill before work started. So we have to find the number of days to complete this job, right? So we have to find x. X is equal to 2 3s are 6. 6 divided by 1. 2 3s are 6 and divide by 1 means 6.
So the work job complete within 6 days, right? Then after in a second question, if a window fitted in one day, how many persons are needed? So see here, two persons fit the window in a 3 days. Now we have to fit the window in a 1 day. So how many workers? X workers are needed. So again x is equal to 2 3s are 6, divide by 1 means 6. So it means we have need 6 persons at this time. So we can completely fit the window in within 1 day, right? एक ही दिन में अगर विंडो फिट करनी है तो कितने लोगों की जरूरत होगी? 6 लोगों की। क्लियर हो गया सबको? डेलिशा, कौन है दूसरा? हम्म, हो गया क्लियर कि नहीं हुआ तीनों क्वेश्चन? Yes, sir. And the last question of this chapter, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? ओके अब तो ये हमारे स्कूल का क्वेश्चन आया है, तो फिर अच्छे से सॉल्व करना होगा इसको। ठीक है, 8 लेक्चर 45 मिनट के स्कूल में है अभी, तो टोटल कितना टाइम हुआ? तो 8 × 45। अब 8 पीरियड में से हमको कितने पीरियड करने? 9 पीरियड। तो एक पीरियड का टाइमिंग क्या रहेगा? अज्यूम करने को बोला है कि स्कूल टाइम चेंज नहीं होता है, वो सेम ही है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगा वो स्कूल टाइम है, तो वही स्कूल टाइम यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, 9 × x। सो 9 पीरियड और x क्या है? हाउ लॉन्ग दिस पीरियड। ओके, सो नाउ 8 × 45 डिवाइड बाय 9। सो 9 × 5 = 45। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 8 × 5 = 40। तो अब एक लेक्चर आपको कितना रखना होगा? 45 मिनट का। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुई? देखो, नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स आर इंक्रीज्ड, सो द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, एक इंक्रीज होता है तब दूसरा डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो लिख लो ये चारों क्वेश्चन जल्दी से।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब दिल्ली से बता, चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करना है या चैप्टर नंबर 5 का? सर हम्म 5 का सर। एग्जाम में ग्राफ आएंगे? 13. नहीं बेटा, ग्राफ नहीं आएंगे, मगर ग्राफ आपको एग्जाम में दिया होगा, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेज पर आपने ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर जितने लोग फेयर नोट चेक कराने के लिए आए थे, मैंने देखा है कि उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक थी। तो उसका रीजन जो है ना, वो मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन एग्जाम में, सॉरी, ऑनलाइन एजुकेशन में ये जो सब प्रैक्टिकल वर्क है वो अच्छे से नहीं करवा पाते, इसलिए मैंने बाकी ही रखा है। शायद 1 महीना स्कूल शुरू हो जाए, बोल रहे हैं कि 1 मार्च से 8th स्टैंडर्ड का शुरू करना है। अगर हो जाती है स्कूल शुरू, तो हम ट्राई करेंगे कि 1 महीने में मैं आपको जितना भी प्रैक्टिकल है, मान लो कि 4th चैप्टर है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, पूरा कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। फिर चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वो वाला चैप्टर भी बाकी है। ठीक है, और ये जो 5th चैप्टर था उसमें जो ग्राफ है वो, तो ये इतनी सब बातें हैं ना, हमको 1 मार्च से खाली 1 महीना स्कूल अगर मिल जाए ऑफलाइन में, तो मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो इसलिए बाकी रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐसा पूछा है कि सी द फॉलोइंग ग्राफ एंड गिव सम आंसर अबाउट द क्वेश्चन, ऐसा करके क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उन तीनों के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा है उसको हैंडल करना। हैंडल करने से मतलब 2-3 चीज है। सबसे पहली चीज है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, फिर उसकी फ्यूचर अवेलेबिलिटी चेक करना। ये 3 बातें होती है डेटा हैंडलिंग में। जब भी हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं ना, तब सबसे पहली बात क्या करेंगे हम? डेटा कलेक्शन। फिर क्या बोलेंगे? डेटा रिप्रेजेंटेशन। थर्ड बात क्या बोलेंगे? फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ आवर डेटा। जो भी यस। डेटा है उसका फ्यूचर में अवेलेबिलिटी कैसे हो। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तीनों टॉपिक, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए ये सब कुछ। डेटा कलेक्शन का मतलब है कि आप डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे। तो डेटा कलेक्ट करने के आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन। उसमें आप फेस टू फेस जाके डेटा कलेक्ट करेंगे। फेस टू फेस का मतलब है कि मान लो कि आपके क्लास में आके मैं ही आप सबसे पूछूं कि भाई दिलीशा मैथ्स में कितने मार्क्स है, कौन सकीना मैथ्स में कितने मार्क्स है, तभी बराबर ईराम, फिर अलवीरा, जितनी भी गर्ल्स है उन सबको मैं अकेले जाके पूछूं फेस टू फेस कि भाई कितने कितने मार्क्स है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कि आप डेटा फेस टू फेस कलेक्ट नहीं करेंगे, आपको डेटा ही कलेक्ट करना है, लेकिन फेस टू फेस डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू है ना आप डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या हो सकता है मीडियम में? मीडियम में हो सकता है न्यूज़पेपर, मीडियम में हो सकता है मूवी, सीरीज, सीरियल, शॉर्ट वीडियोस, इंस्पायरेशनल वीडियोस, knowledgeable videos, रेफरेंस बुक, आवर टीचर। ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं हमारे लिए? मीडिया।
और वो जो मीडियम है वहीं से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। जब मैंने ये चैप्टर करवाया तब एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया था कि कोविड-19 के केस कितने एक्टिव केस हैं हमारे इंडिया में। अगर उसका डेटा आपके पास है तो वो है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप तो जितने भी कोविड पेशेंट है उसको मिलने गए कि भाई तुझे कोविड हुआ है, ठीक है, तुझे कोविड हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो आप सब तो वो है प्राइमरी, लेकिन ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो डेटा है कोविड-19 का उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। After collection, we have to represent this all the data in some different ways. For example, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या हुआ? कोई एक आपको सिंबल दे देगा। आपने बहुत सारे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वहां पर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि मान लो कि 3 डॉग प्लस 2 कैट इज इक्वल टू 18। बाद में देखा 3 कैट प्लस 2 एलिफेंट इज इक्वल टू 120। फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉग, कैट एंड एलिफेंट। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, आई थिंक। उसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि आपके पास जो न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन है उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट करना। मान लो कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है उसमें लिखा है कि कार का सिंबल अगर दिया हो तो समझना कि वो 100 कार के बराबर है। कितनी कार के बराबर? 100 कार के बराबर। तो अगर मान लो कि जुलाई में कितनी कार जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई, तो वहां पर सिंबल दिया है आपको 2.5 कार के सिंबल दिए है। इसका मतलब कि 250 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। अगस्त में देखने जाओ तो 3 कार का सिंबल दिया है, तो 3 इंटू 100, 300 कार मैन्युफैक्चर हुई। सितंबर में देखने जाओ तो 4 कार है, तो 4 कार का मीन्स है 400। इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। जैसे ही आप पिक्टोग्राफ करेंगे तो पिक्टोग्राफ सब जगह पर पॉसिबल नहीं है। ये तो बस क्या है कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर लग रहा है वो पिक्टोग्राफ करने में खुश हो जाएगा, क्या बात है, कार दी हमको, ठीक है। लेकिन ये कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक आइडियल मेथड नहीं। तो और कौन कौन से तरीके से हम डेटा जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमारे पास आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब क्या है कि भाई चलो भाई आपके क्लास में से ही रिजल्ट को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो कोई एक लड़की, मान लो कि अलवीरा जो है, प्रेजेंट है कि नहीं है अलवीरा? नहीं। नहीं है तो कौन प्रेजेंट है दूसरा? डेलिशा और कौन सकीना तथी तीन के सिवाय? सीरत है, देन इस्मत है, मुस्कान है, इस्मत। सारा। इस्मत ठीक है, चलो इस्मत को ले लेते हैं। इस्मत जो है उसके मार्क्स को मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, तो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं? तो बोला कि भाई मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती सबके मार्क्स मैंने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर नीचे लिख दिया मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, हिंदी। वाई एक्सिस पर नंबर लिख दिए 5, 10, 50, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, इस तरीके से। और पूछा इस्मत को कि भाई मैथ्स में कितने मार्क्स है? तो उसने बोला कि सर 50 मार्क्स। तो मैंने 50 पर एक लाइन ड्रॉ की और उसको मैंने मैथ्स जो नीचे एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है वहां तक कनेक्ट कर दिया। एक बार बन गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सब सब्जेक्ट के मार्क्स जो थे उसको लिख के उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसी को बोलते हैं हम बार ग्राफ, जो यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 2003 to 4, 2004 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। अज्यूम करो कि वहां पर लिखा है मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है। और जो 50, 100, 150, 200, 250 लिखा है वहां पर अज्यूम करो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40।
और वो हो गया आपका इसमत का रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो कि इसमत का अकेले का रिप्रेजेंट मुझे नहीं करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है एक साथ दो गर्ल का, तो दो गर्ल्स का मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से करूं? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डबल बार ग्राफ। अगर मुझे इसमत और उसके साथ साथ में सीरत जहरा इन दोनों के मार्क्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं डबल बार ग्राफ यूज करूंगा इंस्टीड ऑफ सिंगल बार ग्राफ। और अगर कोई तीसरी गर्ल्स आ जाए, बोला सर, दिलिशा ने बोला कि सर मेरे मार्क्स को भी रिप्रेजेंट कर दो, मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो तीन गर्ल्स के अगर मार्क में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे ट्रिपल बार ग्राफ जो है वो उसका यूज करना होगा। ये है डेटा रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल। अब हम आ जाते हैं आइडियल डेटा रिप्रेजेंटेशन पर। क्या हमको तो डेटा रिप्रेजेंट करना है, वो थोड़ी नंबर ऑफ पर्सन का करना है, वो बहुत सारे पर्सन का करना है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार उन लोगों का रिप्रेजेंट करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मुझे तो पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्लास का रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं? तो क्लास के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके क्लास में पूछा कि बिटवीन 0 to 5 मार्क्स कितनी गर्ल है? तो सबने एड्रेस किया कि सर मेरी भी है, मेरा भी है, मेरा भी, मेरा भी। तो मैंने बोला कि क्या आप सब फेल हुए हो? समझ में आई बात? तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ऐसे करके मैंने बोर्ड पर आके सब ग्रुप लिख दिए और किस ग्रुप में कितनी गर्ल्स हैं उसको भी लिख दिया, काउंट कर लिया और लिख दिया मैंने। ठीक है। अब अगर जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो इंफॉर्मेशन है ग्रुप इंफॉर्मेशन, ग्रुप में मैंने कलेक्ट की है, सिंगल इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है। मुझे नहीं पता है कि 0 to 5 में किस गर्ल्स को कितने मार्क्स है, मुझे इतना पता है कि 0 to 5 में 5 गर्ल्स जो है उसको 0 to 5 में मार्क्स है। समझ में आई बात? तो अगर इस तरीके के ग्रुप्ड डेटा है आपके पास और उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा हिस्टोग्राम। क्या यूज करना होगा? हाँ, क्या यूज करना होगा गर्ल्स? यस सर। अगर मुझे डेटा ग्रुप में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या यूज करना होगा? हिस्टोग्राम यूज करना होगा ना, कि नहीं? हिस्टोग्राम। हाँ, ये रहा आपका हिस्टोग्राम, देख लो, ये है आपका हिस्टोग्राम, जहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी बार आप ड्रॉ कर रहे हो सब बार एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ इट इज ग्रुप। अगर इंडिविजुअल डेटा होता तो सिंगल सिंगल होता, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा है जिसका मतलब ये सब ग्रुप एक साथ में ही रहेंगे। तो जितने भी बार आप ड्रॉ करेंगे वो सब बार एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या करेंगे? तो बोला कि जब हिस्टोग्राम में हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं और शराफत सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि शराफत सर ने जब पूछा कि बिटवीन 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, इस ग्रुप में एक भी लड़की नहीं है, सब पास हुए। तो अगर 0 से लेके 40 तक एक भी गर्ल नहीं है तो उसके लिए मुझे स्पेस छोड़ने की जरूरत क्या है? अगर मुझे डायरेक्ट 40 से अगर मुझे ग्राफ में दिखाना है तो क्या मैं बता सकता हूं? तो बोला कि हाँ भाई बता तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सिस को कट करना होगा। और कैसे कट करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ जेड लाइन। जेड लाइन जो कि
जिसको ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं, वो कब यूज होती है? प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ चेक लाइन, आपको आगे बहुत काम आएगी। चेक लाइन or broken line has been used along horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20. 20 means यहाँ पर 20 दिया इसी। हम अगर डायरेक्ट 40 से जाते हैं तो हम लिख देंगे between 0 to 40 के नंबर हम यहाँ पर बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका कोई डेटा ही नहीं है, उसका कोई है ही नहीं, तो कैसे बताए? तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है, और इसके बाद में एक और रिप्रेजेंटेशन मोड है जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट रिप्रेजेंट होता है सर्कल में, और सर्कल का मतलब तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री। इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस ऑल द डेटा, द गिवन डेटा इनटू डिग्री, and then after you can represent. See the one example of the pie chart, and what is the step for the pie chart? How can we represent pie chart? Please see here. You can see in a screen. Your first step is draw a circle with any convenient radius. Mark its center O and radius OE. क्या करना है आपको? कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। कन्वीनियंट रेडियस का मतलब क्या होगा? जो आपको सुटेबल रहे। मान लो कि आपके पास स्पेस बहुत कम है तो आपने छोटा सर्कल ड्रॉ किया। कोई था तो उसको 2 पेज में सर्कल ड्रॉ करना था, इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, कोई बात नहीं, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन की। कोई था उसने एवरेज ड्रॉ किया। हाँ, लेकिन सर्कल ड्रॉ करना है विथ एनी कन्वीनियंट रेडियस, आपको जो ठीक लगे वो रेडियस का। जहां पर आपका राउंडर का पॉइंट होता है उस पॉइंट पे आप सेंटर ओ लिख दो और वहां से कोई भी एक साइड एक रेडियस ड्रॉ कर दो ओ ए, एज यू कैन सी इन अ फिगर। बाद में क्या करेंगे? विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी आर मेकिंग ऑल दिस एंगल। प्रोटेक्टर का यूज आपको मैंने बताया था किस तरीके से यूज करते हैं। प्रोटेक्टर की जो नीचे बेस लाइन होती है ना, उस बेस लाइन को आपको रेडियस पर कोइंसाइड करना है। कोइंसाइड का मतलब उसके ऊपर रख देना है, और प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट और हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट दोनों एक साथ इंटरसेक्ट हो, उसका ध्यान रखना है। बाद में आपको जितने भी डिग्री एंगल मेजर करना है कर दो, 60 है, 90 है, 120, 150, 165, 180, जितना भी एंगल है मैक्सिमम आप 180 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं प्रोटेक्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता जाएगा पाई चार्ट। और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है आपका, उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कौन सा डेटा हो सकता है? मान लो कि हमारे पास अभी एक्टिविटी सीखते हैं कोरोना के, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में? अगर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हो तो उसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, पता ही है कि इंडिया जीतने वाला है, फिर भी हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कहीं पाकिस्तान जीत तो नहीं जाएगा, कहीं इंडिया से कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। पता ही है कि इंडिया ही जीतने वाला है, फिर भी वर्ल्ड कप होता है तो हम सोचते हैं कि यार शायद इंडिया जीत जाए, शायद इंडिया जीत जाए। मंडे को मैथ्स का एग्जाम है, यार शायद मैं पास हो जाऊं, बस इतना मुझे कोई लिखा देना, बढ़िया रहेगा। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ये सब एग्जाम्पल है फ्यूचर अवेलेबिलिटी का, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फेयर में गए हो आप, वहां पर आपको स्पिनिंग व्हील मिल जाएगा, घुमाते रहो घुमाते रहो, कोई एक नंबर डिसाइड करो, उस नंबर पर अगर आपका एरो स्टॉप होता है यू वॉन सम गिफ्ट, सम प्राइज आपको मिलेगी, और अगर हार जाते हो तो कोई बात नहीं।
तो ये है प्रोबेबिलिटी, कॉइन की प्रोबेबिलिटी, डाइस की प्रोबेबिलिटी, प्लेइंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी, जनरल प्रोबेबिलिटी, ये सब इसके टॉपिक है। 5.3 एक्सरसाइज में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस किए हैं। लॉट्स ऑफ मतलब लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, कॉइन का भी प्रैक्टिस किया, स्पिनिंग व्हील का भी प्रैक्टिस किया, डाइस का भी प्रैक्टिस किया, प्लेइंग कार्ड का प्रैक्टिस किया, जनरल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हमने। उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलो तो यहां तक हम रखते हैं। मंडे को हमारा लेक्चर नहीं होगा, ट्यूसडे को भी नहीं, वेडनेसडे को भी नहीं। थर्सडे को जब हम मिलेंगे तब आपको मैं क्वेश्चन पेपर जो है हमारा FA4 का वो आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। इस्मत, माज, मुहद्दिसा, नजमा, सीरत जहरा, सकीना नूरानी, शेखानी माहीन, तदहीर,